Laughter as Dissent, Comedy in the Dark is the title of our next session. Now, we currently live in a time where one of the biggest questions everyone is asking is, are all jokes funny? If you couch something as humor or satire, is it acceptable? What are the limits of not hurting somebody's sentiments? Can you say anything about the government, the administration, about politicians, about the establishment, in the guise of it being humor, about satire? Where are those limits really? Our next speaker on stage is a young and upcoming writer whose job, whose dhanda, or a part of his dhanda is making fun of the government, is poking fun of the government, and very frequently actually getting into trouble for it. He's been on a collision course with the censors because that's the other side of what he does. He's not just a satirist, he's not just a stand-up comic, he's also one of Bollywood's most promising and rising creative forces. He was recently in the news, made big headlines for his song Jabra, a fan for the film Fan with Shah Rukh Khan. And if you watched films in 2015, you know that the movie that he wrote, his debut as a film writer, was one of the most stunning films of 2015. It was called Masan. So our next speaker on stage is going to take you through some of the things he does. He's also part of a wildly, virally popular group on the internet called Aisi Taisi Democracy, which is so perfectly named for our time. Join me, ladies and gentlemen, in welcoming on stage Varun Grover. हेलो 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 नमस्कार। सबसे पहले हम लोग मिलके एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की। अब मैं जो भी बोलूंगा मुझे माफ है। आगे क्योंकि सबसे जरूरी बात हमने बोल दी है, अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले कुछ लोग यहाँ शायद there are some people who may not understand Hindi, but predominantly this session is in Hindi. I am sorry for that because most of my political satire is for Hindi speaking audience. I come from Lucknow, which is a Hindi speaking place, तो मेरी भाषा वही है, and this so I can't do anything about it, just an apology. But मुझे लगता है कि इस देश में हिंदी बोलने के लिए इससे अच्छा समय और कोई नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में हिंदी बोलते हैं तो ठीक है, हमको भी इस समय फ़ायदा उठा लेना चाहिए इस चीज़ का। मेरे हाथ में कुछ नोट्स हैं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी चीटिंग करूंगा बीच बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि चीटिंग करने वालों को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं। विजय माल्या को देखिए, और तो हो सकता है थोड़ी इज्जत बढ़ जाए मेरी। और एक और चीज़ जो कि हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का, वो इस देश में आ गया है, रामराज। आपको मुबारक हो, रामराज यहाँ आ चुका है। इतना तगड़ा आया कि कन्हैया पिट गए भीम के हाथों। सोचिए इतना बढ़िया, मतलब क्या हो सकता है कि पूरा माइथोलॉजी हमारे सामने खेला जा रहा है यहाँ पे, कितनी बढ़िया बात है। और दिल्ली वालों के लिए एक और खास बात ये है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो बहुत ही बढ़िया हैं। वो हर चीज़ में ऑड इवन है, वो सिर्फ ट्रैफिक में नहीं ऑड इवन है, उनका पर्सनैलिटी ही ऑड इवन है उनकी। ऑड डेज पे वो डिसेंट को सपोर्ट करते हैं, जाके हर जगह डिसेंट को सपोर्ट करते हैं। इवेंट डे पे अपनी ही पार्टी में डिसेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ऑड डे पे वो बोलते हैं भैया ऑड इवन गाड़ी चलाओ, है ना, वो एक दिन गाड़ी एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है। और ये वो इवेंट डे पे कोई भी आता है बोलता है हमको यमुना में ना यमुना की बत्ती लगानी है, आओ भैया, तो इवेंट डे पे उनका वो चलता है। तो खैर ये सब है, लेकिन हाँ, तो मैं यहाँ बात करने आया हूँ कॉमेडी एज डिसेंट, laughter in the dark, how dark it is, what type of comedy can be called dissent, what are the establishments, various establishments we are speaking about. And we, when I say we, the whole entire stand-up comedy community in India, and specifically I am part of this group called Aisi Taisi Democracy. उसमें मैं हूँ, संजय रजोरा दिल्ली के एक कॉमेडियन हैं, और राहुल राम जो कि इंडियन ओशन के मेंबर हैं द बैंड, और वो हम तीनों का मिलके एक ग्रुप है। तो हम किस तरह की कॉमेडी करते हैं और क्यों करते हैं उस सब पे बात होगी। दैट्स द ब्रॉड एजेंडा। बट
सबसे पहले मैं क्यों कॉमेडी करता हूँ, वाई आई एम बार बार मुझ पे इल्जाम लगता है कि तुम इतने सिनिकल क्यों हो यार, इतना कुछ अच्छा हो रहा है देश में, तुमको खराबियां ही क्यों दिखती हैं और ये वो। मैं बताता हूँ कि मैं सिनिकल क्यों हूँ। मैं सिनिकल इसलिए हूँ, सीधा सा कारण है उसका, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जो यूपी से होगा वो समझेगा, यूपी वाले सिनिकल नहीं होंगे तो क्या होंगे। कोई यहाँ है यूपी वाला, कोई है? अच्छा, एक मैं टिप दे देता हूँ, आगे से हाथ नहीं खड़े करने होते हैं। कोई पूछे कि यूपी वाले, हाथ नहीं खड़ा करना, पीछे कर लो हाथ, बताने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप, मैंने ये नहीं पूछा ग्रेविटेशनल वेव्स किस किस को समझ आ गई, ठीक है? आप सिर्फ बिहार में जाके कहिए कि यूपी से हैं तो वहां उसको लगेगा हाँ फ्यूचर से आया है कोई, ठीक है? बाकी जगह आप अपना छुपा के रखिए। और बॉम्बे में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, मैं पंजाबी आइडेंटिटी ले लेता हूँ वहाँ पे कि मैं पंजाबी हूँ, जो कि झूठ है, आधा झूठ है आधा सच है। तो खैर, तो ये एक सिनिसिज्म वहाँ है, क्योंकि आप क्या करें। आप, मैं यूपी की ट्रेन्स की बात करूँ तो सिर्फ यूपी में ही ऐसा होता है। यूपी की ट्रेन्स में आप जाएंगे तो टॉयलेट में आप जाइए, ट्रेन के हग्गे का मग्गा भी लोहे की चेन से बंधा होता है। इतना कम भरोसा है लोगों को एक दूसरे पे। जितनी मोटी चेन में वो अनारकली को बांधा गया था मुगले आजम में, उतनी मोटी चेन से वो हग्गे का मग्गा रखा हुआ है, बंधा हुआ। पानी के नलके पे वो उन्होंने वो लॉक लगाया होता है टॉयलेट में, ट्रेन के टॉयलेट में पानी का नलका ना उखाड़ के ले जाए कोई। उसमें भी हम आते थे जाते थे, वापसी में पता चलता था वो डब्बा भी गायब है, वो नलका भी गायब है, चेन रगड़ के आना पड़ता था हम बच्चों को। तो इस तरह के माहौल के बाद आप क्या करेंगे? आप सिनिकल ही होंगे ना, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन बात ये है, यूपी की एक और मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि जैसे हम लोग ट्रेन बसों में जाते थे, बस स्टेशन पे आप जहाँ भी रुकेंगे, बीच में एक बंदा चढ़ता था बस में, वो बेचने के लिए, जूसर एक बेचने के लिए चढ़ता था। तो प्लास्टिक का 10 रुपए का या स्टील का 10 रुपए का जूसर होता था, छोटा सा जूसर, हैंड रन जूसर। उसमें वो एक संतरे से वो 5 कप जूस निकाल के दिखा देता था। हम लोग बड़े इंप्रेस हो जाते थे, यार एक संतरे से 5 कप जूस निकाल के दिखा दिया। और हम लोग वो ले आते थे, घर आते थे, कभी उससे 5 कप क्या आधा कप नहीं निकलता था। 2014 में पूरे हिंदुस्तान ने वो जूसर खरीद लिया है। जो जितने वो 5 कप बोले थे, आपसे आधा कप आपको नहीं मिला है आज तक, आप याद रखिए। और दिल्ली वालों को मुबारक देता हूँ, आपने दूसरा भी खरीद लिया उसके बाद। वो दूसरे जूसर के उसमें से तो डिल्डो निकला है डब्बे में से। आप लोग खुश हैं, लेकिन बढ़िया है आपका वो जो भी है। लेकिन ये अब इस सब के साथ यहाँ से कॉमेडी डिसेंट कब बनती है? कॉमेडी डिसेंट मेरे हिसाब से तब बनती है जब when it punches up, okay, when it is anti-establishment, the kind of establishments we'll talk about later, but when it punches up, when it talks from the point of view of the oppressed, when it talks about people who are oppressing or the systems that are oppressing or the ideologies that are oppressing, और वो सारी की सारी चीजें हम कॉमेडी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, बट इट हैज बीन अ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। शुरू में ऐसा होता था, व्हेन आई स्टार्टेड आउट, मैं ऐसा किया है मैंने बहुत बार, जब मैं स्केचेस लिखता था, कॉमेडी लिखता था, इट वाज देयर वर सम जोक्स ऑन gays, there were some jokes on say handicapped people. एक हिंदुस्तान में एक जो शोले का ठाकुर मिल गया है ना, उसके बाद से that guy has become a euphemism for any joke on disabled people. आपको कोई भी disabled लोगों पे जोक मारना है, आप ठाकुर पे जोक मार के उससे निकल सकते हैं, which has been happening, and I think that is not dissent. That is not dissent. That is comedy, probably cheap comedy or whatever वो आप खुद अपने हिसाब से define करें। लेकिन इन सब चीजों के बीच में establishment के बारे में बोलने वाली comedy, and there is there is a line by a comedian saying great jokes are ones that offend and yet please at some internal level. A great joke is something which makes 50% of the people, and it's a perfect joke, which makes 50% of the people applaud and the rest 50% are sitting in shock or hurt or offended. वो balance तभी हो सकता है जब आप establishment के बारे में बात करें। और मेरी पोजीशन ये है कि I am a upper caste Hindu male. There has been no
बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट मेरे ऊपर हैं ही नहीं एक्चुअली, इन इंडिया देर आर वेरी फ्यू एस्टैब्लिशमेंट्स। हाँ, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, आइडियोलॉजिकल मिडिल क्लास एक मोरालिटी है, वो एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है हमारे देश में। फैमिली का प्रेशर एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है हमारे देश में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एज लुई C.K., वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियंस, ही सेड दिस फॉर वाइट अमेरिकन और वाइट मैन, ठीक है। उसी को मैं अगर यहाँ ट्रांसपोज कर दूँ तो हमारे देश में अगर मैं कहूँ कि अपर कास्ट हिंदू मेल को आप किसी टाइम मशीन में बिठा के आप कहीं भी भेज दें पास्ट में, ही विल नेवर बी ऑप्रेस्ड। आप किसी भी सदी में भेज सकते हैं, वो कभी भी ऑप्रेस नहीं होगा। वो कहीं भी निकलेगा, टाइम मशीन जहाँ भी खुलेगी वो बाहर निकलेगा और उसको वेलकम रेड कारपेट मिलेगा। तो वो हाल है। आपको अपना प्रिविलेज समझना पड़ेगा इस तरह की कॉमेडी के लिए, आपको अपना पोजीशन समझना पड़ेगा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ी सी, क्योंकि बाकी तो मतलब पॉलिटिक्स तो हर दिशा से हमारे ऊपर फेंकी जा रही है, लेकिन फिर भी एक बेसिक सेंस। सो दैट्स व्हाट डिसेंट एज कॉमेडी इज फॉर मी। देन द काइंड ऑफ व्हाट हैज चेंज्ड, व्हाई आर वी हैविंग दिस सेशन हियर टुडे, अचानक से क्या हुआ है? 2016 में हम कॉमेडी एज डिसेंट की बात क्यों कर रहे हैं? 2016 में ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि मैं 2005 से कॉमेडी लिख रहा हूँ, इट्स बीन 11 ईयर्स। उसके शुरू के 9 साल मेरी कॉमेडी जब थी, उस समय यूपीए की सरकार थी इस देश में। उस समय किसी ने मुझे आके कभी नहीं बोला कि यार बहुत बहुत ब्रेव हो तुम, ये जोक्स कर रहे हो। जो पिछले 2 साल में मैं हर हफ्ते सुनता हूँ, हर हफ्ते मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं, बहुत यार तुम बहुत दम है तुम में यार, या बहुत क्यों, मतलब इतना पंगा क्यों ले रहे हो? मैं कहता हूँ मैं तो पंगा, यार अगर ये पंगा ही है तो मैं 11 साल से ले रहा था, उसमें से 9 साल मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। सो इट्स मोस्ट ऑफ इट इज एनेक्डोटल एविडेंस, ओके, एज पर सरकार की तरफ से कोई प्रेशर, पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर, सिस्टम की तरफ से कोई प्रेशर मुझे नहीं लगता अभी तक हमारे देश में किसी भी कॉमेडियन को आया है। सो दैट इज अ गुड थिंग। और कल अमित शाह साहब यहाँ बैठे हुए थे, उनका सेशन था, एंड ही एक्चुअली रिस्पॉन्डेड कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी पर जोक हो या अमित शाह पर या किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर जोक हो और उसको वो दबाने की कोशिश करें, विच इज़ अ वेरी वेलकम थिंग। वो सुन के मुझे लगा कि हाँ मैं सही सोचता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी होपफुल अबाउट द सीन ऑफ कॉमेडी इन इंडिया। आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस थिंग कि यहाँ पे लोग जोक सुन सकते हैं। इट्स प्रॉब्ली, आई डोंट नो, ये मैड होप है, ये स्टूपिड होप है, ये जो भी है, लेकिन ये है और मैं सीरियसली होपफुल हूँ, इसीलिए करता हूँ। नहीं तो मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। मुझे सड़क पे थोड़ी दूर भी कोई पुलिस वाला, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं पैदल चल रहा हूँ और ट्रैफिक वाला दिख जाता है और मेरे को देखता है तो मैं घबरा जाता हूँ थोड़ा सा। तो मैं उतना डरपोक हूँ, उसके बावजूद मैं ये कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ इस देश में डिसेंट को लेकर। एंड आई थिंक द करेंट एस्टैब्लिशमेंट, उसके साथ जो जो चीजें हैं हम उस पर अभी आएंगे। अभी मैं क्या कहते हैं वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन लगा रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे तो लेकिन हाँ, करंट एस्टैब्लिशमेंट जो है, आई थिंक इन दैट मैटर आई एम वेरी होपफुल कि वो जोक्स सुन सकते हैं। इसमें एक और मेरे फेवरेट कॉमेडियन है जेफ रॉस, उनकी एक लाइन है, यू कैन, इफ यू कैन लाफ एट योरसेल्फ, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। और ये बात मुझे सच में बहुत बहुत ही सही लगती है, बिकॉज अल्टीमेटली कॉमेडी इज लिबरेटिंग, डिसेंट इज लिबरेटिंग फॉर नॉट जस्ट फॉर द पर्सन हु इज सेइंग इट, फॉर द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट, बिकॉज देयर इज सम communication which is happening. The communication happens verbally through the form of an art, through the form of a culture dialogue, ठीक है? तो वो ऐसा नहीं ना उठा के मैंने पत्थर या जो भी पुतले जलाए, वो सब नहीं हो रहा है ना, यहाँ बात हो रही है। तो जैसे कि अगर मैं पुराने टाइम की, यूपीए के टाइम की कॉमेडी का मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि क्या हो रहा था उस समय। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे पहला जोक लिखा था वो उस समय 2005 में मनमोहन सिंह उसी समय न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ की टैक्सी यूनियन से मिलने वाले थे, और वहाँ की टैक्सी यूनियन इंडियन टैक्सी यूनियन थी, उनसे मिलने वाले थे और वो कुछ डिमांड्स लेके उनके पास आई थी। और मेरा पहला जोक शायद यही था कि मनमोहन सिंह ने उनको कहा कि भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद इंडिया में किसी और की गाड़ी चला रहा हूँ। दूसरा एक और, जब 2013
का 15 अगस्त था शायद मनमोहन सिंह का आखिरी 15 अगस्त जो था एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो मैं दिल्ली में ही शो कर रहा था और वो लाल किले पे जाने वाले थे, और उस दिन मैंने उसके ठीक पिछले दिन मेरा शो था इंडिया हैबिटेट में, और वहाँ मैंने ये बात कही थी कि आई डोंट थिंक मनमोहन सिंह को आज झंडा फहराने के लिए लाल किले पे चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जैसी उनकी इस समय मानसिक स्थिति है उनको किसी ऊंची जगह पे नहीं जाने देना चाहिए। तीसरा, राहुल गांधी के बारे में जब बहुत सारे ये जो चमचागिरी जो कांग्रेस में चलती रहती है, उस चमचागिरी के दौरान कहीं पे ये बात निकली थी, कुछ बहुत सारे लोगों ने डिफेंड किया, ये कहा था कि वो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जब 2012-13 में पीएम के उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी, और ये कहा था बहुत सारे लोगों ने कि ये राहुल गांधी तो गॉड्स गिफ्ट और ऐसा सब 2-3 जो कांग्रेस के नेता हैं। मैंने ये तब मुझे ये लगा था कि किसी दिन अगर राहुल गांधी गलती से पे जहर लगा लेना तो अगले दिन आधी कांग्रेस मरी हुई पाई जाएगी। तो यहाँ पे उस समय ये इल्जाम मुझ पर कभी नहीं लगा था, जो अब दिन भर सुबह से शाम लगता रहता है कि तुम प्रधानमंत्री या तुम ये नेता या वो नेता के खिलाफ इतने कड़वे शब्द या इतने तीखे शब्द या इतने गंदे छिछोरे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं सिर्फ इसलिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये माहौल बदला है, एंड इट्स राइट नाउ इट्स डीलिंग विद एन एंग्री पर्सन। यू कांट इवन टेल it's like dealing with an angry person who is so angry that you can't even tell him that he is angry because that will make him angrier. कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ जो पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे लगता है इस समय कॉमेडी हो ही नहीं रही है, मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉमेडी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रियल न्यूज इतनी खतरनाक हो गई है कि हमारी कॉमेडी उसके सामने फेल है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि इसमें हम जोक क्या बनाएं, हम सीधे सीधे फैक्ट जाके बोल के आ जाएं, वो कॉमेडी से बड़ा है, इतनी बुरी हालत हो रही है। आप सोचिए, एक आदमी ने खबर मिली कि बीफ खाया, उसके घर में घुसे, उसको मार दिया गया। अब सोचिए, विदेश में कोई आदमी मरता है तो पुलिस आती है, आदमी को उठा के ले जाती है, उसकी फॉरेंसिक, उसके खून की फॉरेंसिक जांच होती है। यहाँ आदमी मरा, पुलिस आई और उसके फ्रिज में गई और उसके फ्रिज से जो मीट था वो उठा के ले गई, उसका फॉरेंसिक जांच हुआ। इसके सामने मैं क्या जोक बनाऊंगा बताइए? यहाँ आप किसी को कह नहीं सकते कि आप इंटॉलरेंट हैं, क्योंकि उसका जवाब ये होता है कि तूने मुझे इंटॉलरेंट कहा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इसमें आप क्या जोक बनाएंगे? यहाँ पे घोड़े की टांग टूट गई है, वो नेशनल न्यूज बन गई है आज की तारीख में। आप सोचिए, 4 दिन से टीवी पे वो चल रहा है, 4 दिन से। यहाँ पे कितने सारे ऑपरेशन होते हैं। दलित के एक गांव में, दलितों के गांव में उनके कुएं में जहर डाल दिया गया था, क्योंकि वो लोग बारात लेके निकले थे, जो अलाउड नहीं है दलितों को। कुएं में जहर डाल दिया था जाके अपर कास्ट लोगों ने। तो वहां पे एक घोड़े की टांग टूटी है, वो नेशनल न्यूज है। लेकिन उससे एक चीज अच्छी मुझे मालूम चली कि शाखा में लाठी भांजना अच्छा सिखाया जाता है। दैट एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे हैं। नहीं तो मैं सोच रहा था शाखा में, मैं देखता हूँ आजकल फंडिंग, क्योंकि वो उनका वो नरेगा है ना, राइट विंग का शाखा, तो उसमें लाठी बांधना सिखा रहे हैं। मैंने बोला लाठी बांधना सिखा रहे हो और बगल में आप भाषण दे रहे हो ISIS के खिलाफ। आपको पता है उनके पास क्या है और आपके हाथ में ये लाठी, मतलब कुछ मुझे कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया। लेकिन ये दूसरी चीज ये, उन्होंने जब घोड़े की टांग टूट गई उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो सबसे पहला उनका डिफेंस, वो MLA साहब जो है, उनका सबसे पहला डिफेंस ये था कि ओ नहीं वो घोड़े को ना पानी नहीं पिलाया हुआ था सुबह से, इसलिए वो गिर गया। मैंने तब पानी नहीं पिलाया था, उससे फ्रैक्चर हो गया। मतलब करवा चौथ के दिन आधा हिंदुस्तान फ्रैक्चर हो जाए तब तो। ये कहाँ का मतलब उनका वो था। फिर अभी खास हमारे ये हैं बहुत प्यारे न्यूज एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये अपना न्यूज में वो किया, एक SMS पोल किया अपने चैनल पे। वो जो रात को न्यूज एट 9 जो भी है, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आप भी मत देखिए, कम देखिए प्लीज। लेकिन न्यूज में उन्होंने SMS पोल किया जिसमें ये पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए या नहीं। ये क्या है? ये वॉर है कि ये फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम है? ये चल क्या रहा है?
ये हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पाया। अर्नब गोस्वामी के चैनल पे डिसाइड हो रहा है कि हमको पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कि नहीं। मतलब मैं सोच रहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के अगर टीवी देख रहे होते उस समय वो क्या करते। वो देख रहे हैं, वो एकदम से वो फोन करते अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को कि भाई क्या करना है अगर यस आ गया तो। मतलब ये क्या वो क्या है, मैं सीरियसली इस सबके सामने आप क्या जोक बनाएंगे आप बताइए। फिर अभी थोड़े दिन पहले हमारे स्टेट हॉर्न ओके प्लीज पे बैन लग गया है। ट्रकों के पीछे हॉर्न और प्लीज पे अब स्टिकर लगा दिए, बड़े बड़े ब्लू स्टिकर लगा दिए हैं, वो जो भी ब्लू टेप लगा दिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि हॉर्न ओके प्लीज पढ़ के लोग हॉर्न बजाते हैं। वे हम बंदर हैं क्या? हॉर्न ओके प्लीज लिखा तो पै 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 हम पढ़ के, ऐसा नहीं होता है। और हॉर्न और प्लीज, अब बहुत सारे ट्रक हैं, आपने अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे आप देखेंगे हॉर्न और प्लीज पे टेप लगी हुई है, तो बहुत सारे ट्रक ओके 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 बोलते हुए घूम रहे हैं इधर उधर। वो एक दूसरे को, इधर से जा रहा है ओके, उधर से आ रहा है ओके, तो वो बेचारे परेशान हैं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कहाँ हमने आज तक कौन सी चीज मानी है लिखी हुई जो वो हम मान रहे थे। हमने आज तक कब माना है भाई? हम तो कभी नहीं मानते हैं। जहाँ लिखा होता है गधे के पूत यहाँ मत मुँह, तो वहीं सबसे ज्यादा जाके लोग, जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहाँ हमारा वो वैदिक दिमाग जो आर्यभट्ट के टाइम का हमारा जो है ना दिमाग, कि 90 डिग्री हमारा दिमाग नाप लेता है। जहाँ दो दीवारें 90 डिग्री पे हैं, 89 पे होंगी तो कुछ नहीं होगा। जहाँ 90 होगा हमारे अंदर से आवाज आएगी थूक 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 थूक, तो हम लोग थूकते हैं सीधे। वो आप उस सब में आप ट्रकों के पीछे से हॉर्न और प्लीज हटा रहे हैं। फिर ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया चीज पिछले दिनों देखने को मिली। अब इस सबके सामने क्या सटायर किया जाए आप बताइए। ये किताब एक है बच्चों के लिए छपी है, बाल नरेंद्र। इसमें चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जूसर। तो इसमें कुछ कहानियां, मैं आपको 2-3 कहानियां बता देता हूं, आप पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब कहां से आ रहा है। इसमें मतलब दिखाया गया कि वो बचपन से कितने ग्रेट थे, और मतलब ही वाज डेस्टाइन्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट, या डेस्टाइन्ड टू बी द, अभी आज हमारे एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे नॉस्ट्रेडमस की कोई भविष्यवाणी शेयर की है इन ऑल सीरियसनेस। अब इस पे मैं क्या जोक बनाऊंगा। नॉस्ट्रेडमस की कोई भविष्यवाणी है जो कि 1555 में, नॉस्ट्रेडमस पहली बात तो मतलब जो भी ठीक है, यहाँ जितने लोगों को नहीं पता है उनको जानना भी नहीं चाहिए कि वो कौन था, लेकिन आप जिनको पता है आप जाके देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या चल रहा है। मतलब वो कुछ अलग स्पेस में है। तो उसी स्पेस में ये किताब है। इस किताब में उनके बचपन की गाथाएं हैं, और उस गाथा में ये है कि मतलब 1-2 बच्चे हैं उनके जो आसपास फैन हैं, वो ना हमेशा वो अरे नरेंद्र की शर्ट देखो, अरे नरेंद्र के बाल देखो, अरे नरेंद्र के, वो एक बच्चा है इसमें, वो मैं दिखा, वो बच्चा बड़े होके अरुण जेटली बना। तो वो टीवी पे लाइव आ रहा है, मुझे ऐसा बताया गया है। बहुत सारे लोगों ने टीवी फोड़ लिए होंगे अब तक अपने। तो ये फिर इसमें कुछ है, ये एक मजेदार जो सेंटर पीस है इसकी कहानी का, मैं वो आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम बस तेजी से कुछ 5 मिनट में क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन ये इसमें एक सेंटर पीस है। इसमें कहानी है कि बच्चे नदी किनारे मिट्टी में ना ये क्रिकेट कुछ कैच खेल रहे हैं, ठीक है, नदी किनारे मिट्टी में वो कैच, उन दिनों गुजरात में मिट्टी हुआ करती थी, तो वो अपना उनकी बॉल नदी में गिर जाती है। कैसे? पहले तो गधे बच्चे नदी किनारे कैच कौन खेलता है पहले ये बताओ, ठीक है, खेल रहे हैं, वो बॉल उनकी नदी में चली जाती है। नदी में मगरमच्छ हैं, यहाँ मगरमच्छ आपको दिख रहे होंगे शायद, आई वॉन्टेड टू गेट स्लाइड्स बट वो हो नहीं पाया, लेकिन इसमें मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छों के बीच में ठीक जाके ये बॉल गिर जाती है। और क्योंकि हीरो हैं ये बाल नरेंद्र, ये जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम लेके आएंगे बॉल, और सारे वो जो उनका दोस्त अरुण जेटली है वो बोलता है हाँ भाई जाओ, नरेंद्र बॉल लेके आएगा। और नरेंद्र जाता है बॉल, और मगरमच्छों के ठीक बीच से बॉल लेके आ जाता है। मगरमच्छों के बीच में बॉल पड़ी है, और सिर्फ बॉल नहीं लाता, वहां मगरमच्छ का एक छोटा बच्चा है, बच्चे को भी ले आता है वापस। ये मगरमच्छ क्या कर रहे थे भाई? ये कैसे मगरमच्छ है? मगरमच्छ की कांग्रेस है। तुम्हारा बच्चा ले गया, अबे बॉल ले गया, तुम्हारा बच्चा भी ले गया, ये कैसे हो तुम यार? किस तरह के मगरमच्छ हो?
फिर एक और जो एस्टैब्लिशमेंट की बात अगर मैं करूं, एक और जो नॉन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हिंदुस्तान में है वो है हमारी फैमिली, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है जिसमें कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। हम लोग बाहर जाके रोड पे हल्ला मचा रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ये सब। अरे घर में डेमोक्रेसी तो देखो यार, घर में अपने माँ बाप के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट करके तो देखो, नहीं करता है कोई। तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और वहीं से शुरुआत होती है इस सिस्टम की। जो पूरा आइडिया है टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर, टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर, जहाँ से भारत माता की जय आया है, जिसपे कि सवाल भी नहीं आप कर सकते हैं, जिसपे आप कोई मतलब सवाल, इस पे वो जो अन्नू कपूर का एक क्लिप है, आप जाके ढूंढिएगा यूट्यूब पे, अंताक्षरी सारेगामापा का किसी चीज का, वो इस पे नहीं बोलने का, तो वही बात हो गई है। तो यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर, और हिंदुस्तान में आई एम मैरिड फॉर 8 years नाउ एंड वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड, मी एंड माय वाइफ, नॉट टू हैव किड्स। बट वो हिंदुस्तान में वो इतनी बड़ी चीज हो जाती है, अगर आपको बच्चा नहीं करना है, आपकी जिंदगी कर देते हैं लोग पूछ के, सब लोग, मतलब रिश्तेदार, दोस्त, मतलब सेंसस 2011 वाला जो कि 2012 में मेरे घर आया, वो पूछ रहा है, वो जब गिनती कर रहा है, बच्चा क्यों नहीं है, आप बिटिया को बुलाइए, हम समझा देते हैं। आप अपना काम कीजिए, गिनती कीजिए, निकलिए यहाँ से। तो उस लेवल का है। और मैं पूछता हूँ कि बच्चा करना क्यों जरूरी है, बच्चा क्यों चाहिए, तो सब पहला जवाब आता है कि नहीं, वंश आगे नहीं बढ़ाना, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं कहता हूँ अरे वंश मतलब वंश आगे, मैं कोई चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मेरे वंश का अचार डालेगी क्या दुनिया, मैं क्यों, मतलब, और क्या राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया, क्या मिला। और बच्चा करना, मतलब बच्चा करना भी बहुत महंगा है आज की तारीख में। आप देखिए इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस है 2-2.5 लाख रुपए, या उससे भी ज्यादा होगी, पता नहीं। बच्चों के लिए, मेरे दोस्त के बच्चे का बर्थडे था, मैं उसके लिए कुछ लेने गया, बेबी प्रोडक्ट शॉप्स आजकल अलग आ गई हैं, वो बेबी प्रोडक्ट, वहाँ एक छोटी सी निक्कर बच्चे की, वो 2000 रुपए की निक्कर। मैंने कहा यार मेरी पूरी निक्कर आ जाती 2000 रुपए की, मेरी पूरी जीन्स आ जाती है, मैं यूनिट मेथड लगाऊं 200 रुपए की होनी चाहिए बच्चे की। हाँ नहीं सर, बेबी प्रोडक्ट, एंटी टॉक्सिक मटेरियल, कोई बच्चा इसको खा भी जाए। मैं कहा खा जाए, मतलब इसीलिए तो मुझे बच्चे नहीं पैदा करने, आजकल के बच्चे निक्कर खा रहे हैं। मैंने ये क्या है, ये क्या मतलब क्यों, और नहीं अब कैसे, ऐसे कैसे खाएगा बच्चा, कैसे अपनी निक्कर खा सकता, कौन बच्चा, रामदेव का बच्चा है, कैसे। और अच्छा, तो टाइम बहुत तेजी से भागे जा रहा है, इसलिए मैं बस एक लाइन विच इज माय फेवरेट लाइन अबाउट कॉमेडी, इवन इफ अगर समय ऐसा है जहाँ कॉमेडी नहीं करने दी जा रही है, या सबको डर लग रहा है, मेरे साथी कॉमिक्स को, या मेरे अंदर भी जो डर डाला जा रहा है एवरी टाइम आई परफॉर्म। अभी मुझे पता, मैं यहाँ से उतरूंगा और बहुत लोग आके बोलेंगे ब्रेव कैसे किया ये सब। तो आई थिंक द वर्स्ट टाइम्स फॉर कॉमेडी are the best times for comedy, and that's it. Thank you. Okay, we have just 2 minutes for questions. I have a couple of questions of my own, but I quickly want to see if anybody wants to ask Varun a question first. Anyone at all? Okay, I'm just going to come to you, but first let me ask you. You've been on a collision course with censors. Yeah. I see that you're attacked all the time online about the jokes you make. Yeah. Which is the joke that you've gotten, or the thing that you've said, either on Twitter or during a stand-up, that you've gotten into the most trouble for? In stand-up, I think it was around the time our Prime Minister was wearing that amazing suit in front of Obama साहब, और उस पे मैंने कुछ किया था, perform in Bombay in a show, and it was just about the fact. So joke has two parts. One is the setup and one is the punchline. And setup has to be foolproof. Setup has to be a fact. Punchline is obviously an exaggeration and whatever imagination. तो उसमें setup में कुछ लोगों ने बहुत बड़ा इशू निकाला कि वो सूट जो ऑक्शन हुआ था शायद 10 लाख या 20 लाख में, और या 2 करोड़ में, I forgot the number, 4 करोड़ में। हाँ, तो वो नंबर पे बहुत लोगों ने बोला कि ये तो झूठ फैला रहा है प्रधानमंत्री के बारे में, वो 4 करोड़ में नहीं हुआ था, या वो 5 लाख में हुआ था, whatever some numbers.
So because of this fantastic, In your current routine, you made fun of Rahul Gandhi quite a bit. You made fun of the Prime Minister also quite a bit. And Mr. As a Kejriwal. comic, yes, of course. Who is it easier to make jokes about, Rahul Gandhi or Narendra Modi? easier, I think Rahul Gandhi, मैं आधी रात को किसी को जगा के नींद से सिर्फ उसके कान में राहुल गांधी बोल दूं तो वो हंसने लगते हैं लोग. तो easier to make jokes. Tell us a Prime Minister joke. The suit one, yeah. Tell us the joke. अच्छा सूट वाला सबसे मजेदार चीज उस सूट के बारे में ये हुई थी कि वो तीसरे दिन डिस्कवर हुआ कि उन्होंने वो नाम वाला सूट पहना है. वो पहले दिन किसी को नहीं पता चला. जिस दिन आप अमित शाह जी ने बोला आपको फोन आया इनको तो हाँ तो वो सूट में वो तीसरे दिन पता चला कि ये सूट में नाम है. तो मैं ये सोच रहा था वो 3 दिन प्रधानमंत्री कितनी ज्यादा परेशानी में रहे होंगे. सोचो ना आप, मतलब अमिताभ बच्चन इन दैट सॉन्ग सारा जमाना हसीनों का दीवाना, वो लाइट बल्ब लगा के वो नाच रहे हैं स्टेडियम में. कोई तीसरे दिन उनसे आके बोलता अच्छा आपने वो बल्ब लगाए थे क्या. 3 दिन आदमी कितने उसमें रहा होगा. कोई भी आ रहा होगा सामने से, उनके अंदर मतलब जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि आके वो तारीफ करेगा, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. वो तीसरे दिन हुआ. तो ये एक उसका मुद्दा था. Are you going to tell us a joke though? ओके अच्छा जोक ये है क्या ये टीवी से मतलब मुझे बोला गया है गालियां न इस्तेमाल करें, और मैं क्योंकि लखनऊ का हूँ तो थोड़ी सी गालियां आ जाती हैं बीच में. तो खैर तो वो सूट पे 1000 बार उनका शायद नाम लिखा हुआ था. मैं सोच रहा था उस आदमी के बारे में जिसने ये सूट सिला होगा. सिलते हुए वो सोच रहा होगा क्या तो मतलब 1000 बार उसको बेचारे को बोलना पड़ा होगा. तो You asked for it. Ladies and gentlemen, Varun Grover. थैंक यू. Now, Pakistan captain Shahid Afridi might have landed himself in trouble yet again while speaking about fans in India. Asked about fans in Mohali before their match with New Zealand on Tuesday. Go to different villages across India and actually stay there for a month and see the villagers, help them. And what it does is it opens your eyes to a whole new part of India that you never really saw before. So Amrita gives